Now in coordinate geometry, if I have to take up assertion A, the point -1,6 divides the line segment joining the points -3, 10, 6, -8 in the ratio of 2:1 internally. Okay, and given 3 points A, B and C form an equilateral triangle AB equal to BC equal to AC. देखो एक बात तो आपके दिमाग में स्पष्ट आती होगी, क्या आ गया उसको पढ़ने के बाद? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स इन योर माइंड? सबसे पहली बात क्या दिमाग में आई? यस, वेरी नाइस, assertion. assertion is true, reason is true. और उसके बाद क्या, और क्या बात आती है आपके दिमाग में इमीडिएटली? Explanation not correct is assertion. Yeah, see here we are talking about internal ratio and here we are talking about sides of an equilateral triangle. So how can it be this? But even then the most probable answer is B, that is both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. But still it will be always good to check it whether it is right or wrong. See, -3, 10 and 6 and what is it? -8, and it has to be divided by, and it is divided in the ratio of what? 2:7. If it is divided, see this point -3, 10 and this point 6, -8 is divided in the ratio of what? 2 and 7. So what I do here is this into this, say multiply 12 and then plus 7 into -3. 7 into -3 is -21. So -21 divided by 2 plus 7. 2 plus 7 is how much? 9. See, immediately I'll come to know here 12 minus 21 is how much? 12 minus 21 is how much? -9 by +9, and that will be equal to -1. Even if I don't do the second part also, that will be over. But anyway हम अगर यहाँ तक आए तो एक बार चेक ही कर लेते हैं. मैं एग्जाम में शॉर्टकट तरीके आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट शॉर्टकट तरीका क्या है? डायरेक्टली आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बहुत कम है. थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट एक बार चेक कर लो. नहीं है, सफिशिएंट टाइम है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हो. दिस विल बी -16 एंड दिस विल बी हाउ मच? -16 and this will be how much? 70. 2 into -8 is -16. 7 into 10 is how much? 70 divided by 2 plus 7, that is 9, and that will be equal to how much? 70 minus 16 is how much? 54 divided by 9. Will it be, how much will it be equal to? 6. So -1 and 6 are the coordinates of the points. Okay, -1 and 6 are the coordinates of the point. तो मैंने आपको 3 तरीके बताए. एक तरीका है सर 1 मार्क के लिए सर शॉर्टकट है सर, तो तुरंत आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि सर यहाँ पर ऊपर जो बात कर रहे हैं वो इंटरनल रेशियो की है, नीचे ट्रायंगल की है, इसलिए दोनों सही है मगर सेकंड आंसर करेक्ट होगा. सर थोड़ा टाइम है तो क्या करो, सेकंड वन तो गलत है ही है, तो फर्स्ट वन एक बार चेक कर लो तो आपका काम हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, the point 04 lies on y-axis. The point 04 lies on y-axis. The x coordinate on the point y-axis is 0. What do you say? आपको क्या कहना है आपका? The point 04 अगर y-axis के ऊपर ही आएगा. Yes, Gaikwad want to say? Both assertion A and reason are true, but reason R is the correct expression of assertion A. Why? Because why? Can you tell me? Because the point 04 lies on the y-axis. The x coordinates on the point y-axis is true. Yeah, very always 0. Okay, यानी यहाँ पर ये 0 होता है और ये क्या होगा? 04 is the correct answer. So the correct, what is it? I can say that assertion A and reason R are true, and R is the correct explanation of assertion A. Value of y is 6, for which the distance between the points P2 minus 3 Q10y is 10. वैल्यू ऑफ कितना बता रहा है वो? y कितना होना चाहिए? 6. तो अभी यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे. तो डिस्टेंस फार्मूला करना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे तो 10 - 2 कितना होगा बच्चों? 8 स्क्वायर, राइट? 10 - 2 कितना होगा? 8 स्क्वायर. और y माइनस ऑफ -3 मतलब क्या होगा? y माइनस ऑफ -3 यानी क्या होगा? x2 - x1, यानी 10 - 2 कितना हो रहा है? 8 स्क्वायर हो रहा है. y माइनस ऑफ -3 मतलब y + 3 होल स्क्वायर. यहां पर हम क्या करेंगे? y की वैल्यू वो कितना बता रहा है? 6 बता रहा है. तो अगर y की वैल्यू मैंने यहाँ 6 डाल दी
तो दिस 8 स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 8 स्क्वायर कितना होगा? 64। और y प्लस 3, y की वैल्यू कितनी बताया आपको? 6 बताया, कितना होगा? 9। और 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। और इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा? 145। बच्चों ये 145 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या 145 10 के स्क्वायर के बराबर होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। डू यू एग्री विथ मी? तो यानी बच्चों असर्शन ए इज फॉल्स। और ये जो है डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट से फॉर्मूला तो सही है, तो यहां असर्शन इज फॉल्स, तो यहां आंसर होगा असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर, ओके। देन द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज 77/6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये चेक करना है आपको। और द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एन सेक्टर ऑफ एन एंगल n एंड रेडियस r इज गिवन बाय। What do you say about this second part? No, what do you say about second part? Second part is actually देखते ही मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या बनता है कि तुमने फॉर्मूला किसका दे रखा है? लेंथ ऑफ ए आर्क। बात किसकी कर रहे हो तुम? एरिया ऑफ अ सर्कल। थोड़ी देर के लिए मान के चलेंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, मगर ये इसका सही जवाब नहीं है, राइट? तो ये इसका सही जवाब नहीं है, यानी बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन आर। तो ये 2 मिनट के अंदर पहले झलक में अगर आपके पास टाइम कम है तो ये इसका निष्कर्ष निकलता है, मगर फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। आप क्या चेक करोगे? आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए कि पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज इट? 5 मिनट्स के अंदर कितना डिग्री होता है रे बच्चों? 30 डिग्री होता है। सो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई यानी 22/7, रेडियस आपको कितना दिया है? 7 दे रखा है, तो इंटू थीटा इज हाउ मच? 30 डिवाइडेड बाय, तो ये 0 0 कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 3 12 जा 7 7 कैंसिल होगा, अगेन 2 6 जा 2 11 जा, तो 77/6 इज करेक्ट आंसर। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप चेक करके फटाफट थोड़ा ओरली कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं है तो थोड़ा असर्शन अगर सही है तो लेंथ ये इसको थोड़ा आप गेस करके भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है, इफ द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 10, आउटर 10 एंड 6 रेस्पेक्टिवली। देखिए अंदर का कितना है? 6 है, और बाहर का कितना है? 10 है। देन द एरिया ऑफ द पाथ इज 16 पाई स्क्वायर मीटर। 16 पाई, इसको m2 मत पढ़ो, इसको m स्क्वायर पढ़ो आप। तो देखिए रेडियस नहीं है, तो रेडियस नहीं है तो डायमीटर का क्या करोगे आप? इसको 10 का रेडियस कितना होगा और इसका रेडियस कितना होगा? 3, यानी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी व्हाट? पाई इंटू 5 इंटू 5 माइनस हाउ मच? पाई इंटू 3 इंटू 3, यानी 25 पाई माइनस 9 पाई इज इक्वल टू हाउ मच? 16 पाई। सर तो ये सही है, 16 पाई ऑफकोर्स स्क्वायर मीटर्स, तो ये तो सही है। सर ये हमको कैसे करना है एग्जाम में? एग्जाम में ओरली कर लो बच्चों। डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस 5 है, और पाई आर स्क्वायर है 5 इंटू 5 25 इंटू पाई 25 पाई हो गया। डायमीटर अगर तुम्हारा 6 है तो रेडियस 3 हो गया, तो 3 इंटू 3 9, 25 माइनस 9 इज 16। विद इन 0 मिनट्स आपको आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या है? इफ द रेडियस is r and this small is small r be the radius of outer and inner circular path respectively, then the area of the circular path is pi r square। इसको करना है r square minus r square। क्या ये सही है? सही है ना। सर्कुलर पाथ का अगर आपको एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल। तो बच्चों व्हाट इज योर कंक्लूजन? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द कंक्लूजन? यस गायकवाड़। Yeah, both are correct. Reason R is the correct explanation of that. Got it? समझ में आ रहा है अभी? Okay, fine. Next, if the circumference of a circle is 176, ये बहुत बड़ा important word है। Circumference है, radius नहीं है। Circumference 176 है, then its radius is 28। ये आपको चेक करना पड़ेगा।
और सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर, दिस इज नोन टू यू। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर है, आपको जानते हैं ना आप, सेकंड सेंटेंस तो सही है। अब रेडियस हमको निकालना है, तो 2 पाई आर कितना दे रखा है बच्चों आपको, 176, तो 2 इंटू पाई इज हाउ मच, 22/7। रेडियस तो आपको ढूंढना है, नेट ये आता है कि चेक करना पड़ेगा ना, मगर 28 है कि नहीं। हाँ वैसे भी कर सकते हो, 28 डाल के भी कर सकते हो, दैट्स नाइस। या तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ। चेक कैसे कर सकते हैं बच्चों, ये देखिए आप 22 1 जा 22 8 जा डायरेक्टली कर लीजिए आप, और 2 1 जा 2 4 जा, r/7 इज इक्वल टू 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r इज इक्वल टू हाउ मच, 28। वरना जैसे सरडे हमारी बता रही है कि सर इसको हम वैल्यू डाल के कर दीजिए, वो भी हो सकता है, वैल्यू डाल दीजिए 28 इक्वल टू 28 आना चाहिए, मगर कैलकुलेशन शुड बी वेरी फास्ट, कैलकुलेशन शुड बी वेरी फास्ट। अगर तुम यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे जैसे वो बता रहे कि सर हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे, वो 28 डाल देंगे तो 7 4 जा 28, और 28 यानी देखिए अगर उसका मेथड के मुताबिक क्या है, 2 इंटू 22/7 सर इंटू 28 हम डायरेक्टली यहाँ डाल देते हैं, और 7 1 जा 7 सर, 7 4 जा 28, तो ये 44 इंटू 4 होगा 176। देखिए एक्चुअली वन थिंग इज देयर हियर, हाउ यू डू इट डजंट मैटर अ लॉट, what you do is matter a lot. Ultimately if at all you are able to conclude that assertion and reason are true and our reason is the correct, ये आ गया तो काफ़ी है। आप रेडियस ढूंढते हो या रेडियस की वैल्यू डालते हो, वो मैं आपको छोड़ देता हूँ, इट्स लेफ्ट टू योर विजडम, आपके विजडम पे मैं उसको छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट है सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 132/7, ये सही है कि चेक करना पड़ेगा। और सेकंड है एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस r इज पाई r स्क्वायर। व्हाट डू यू से ऑफ द सेकंड पार्ट, जैसे आप देखोगे तो व्हाट इज इट, एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r इज पाई r स्क्वायर, सही है क्या? मगर व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस? नो, सो दिस इज राइट एंड दिस इज राइट, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो क्या आंसर आना चाहिए? तो पहले झलक में तो बी करेक्ट आएगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप बी पे रिस्क ले सकते हो, जैसे 4 ऑप्शंस के ऊपर बी पे रिस्क लेना चाहते हो, नहीं सर मेरे पास बहुत सारा टाइम बाकी है, मैं सॉल्व करना चाहता हूं, तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो पाई की वैल्यू है 22/7, रेडिटा आपको कितना दिया है 60/360 आप कीजिए, तो बच्चों 0 0 कैंसल्स, ओके, या 6 6 36, again 6 6 cancels, so what is that 132/7। तो हमारा जो फर्स्ट एटम में जो अंदाज़ा निकला वो सही निकला। सर हम रिस्क लें क्या, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर तुरंत देख के आप बोल सकते हो सर ये तो सर्कल के बारे में बात कर रहा है सर, ऊपर तो सेक्टर की बात चल रही है, इसका क्या संबंध है, हो सकता है कि ये हम सही मान के चले, मगर कभी कभी असर्शन इज फॉल्स भी हुआ था, उसके चांसेस कम है मगर चांसेस है, कैनॉट बी डिनाइड। ओके, वी विल टेक अप स्टैटिस्टिक्स नाउ। इन स्टैटिस्टिक्स कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लास इंटरवल इज 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35, that's all. Now the frequency is 5 and what is it, 5 9 12 12 and 6 and 8. The question asked you is the model class is 10 to 15. This is what is my assertion, ये मेरा assertion है, और reason है the class having the maximum frequency is called the model class. मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को मॉडल क्लास कहते हैं। तो बच्चों आप देखिए कि यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है 12 है, और मॉडल क्लास कितना होना चाहिए D225, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 12 बट द मॉडल क्लास इज 20 to 25। हियर व्हाट इज गिवन, या मॉडल क्लास इज 10 to 55, देन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? या assertion is false but reason is true, कभी कभी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो ये तुम्हारा ऑप्शन होना चाहिए। तो कभी कभी assertion गलत हो सकता है, आप डायरेक्टली ये मत कहिए सर डी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दिस इज द करेक्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मॉडल हो सकता है, assertion भी चेक करो, इसलिए मैंने गणित आपको दिया प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल,
क्लास इंटरवल आपको दिया 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 और 16 to 20. फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 6, 3, 5, 20 and 10. The median class is 12 to 16 and the median is what? The class whose cumulative frequency is just lesser than the median class. Lesser होता है क्या रे? Lesser नहीं होता है, क्या होना चाहिए? Greater than होना चाहिए, not lesser. तो इसीलिए रीजन क्या है? मीडियन cannot be that cumulative frequency जिसका कम होता है. मीडियन क्या होना चाहिए? ज्यादा होता है. यानी रीजन इज रॉन्ग. assertion may be true, may not be true, but reason is wrong. assertion अगर आपको चेक करना है 6 होगा, 6 + 3 कितना होगा? 9, 9 + 5 14, 14 + 10 14 + 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 20 34. Is it right? 34 + 10 44 और n/2 आपको करना पड़ेगा. n/2 मतलब कितना? 44/2. 44/2 यानी 6 is less, 9 is less, this is less. So 34 जहां पर आया है यानी सेकेंड लास्ट 12 to 16 is the correct median. So median is right, reason is wrong. So what is the correct answer? C. Assertion is true but reason is false. So sir assertion चेक करना है क्या? देखिए कभी कभी assertion को चेक करना भी हमें पड़ रहा है. हमेशा ये मत समझना assertion is right, reason is the correct answer. नहीं, ऐसा नहीं होता है. बहुत बार ये गलत भी हो सकता है. नेक्स्ट, द मोड ऑफ द कॉल रिसीव्ड ऑन 7 consecutive days. फोन कॉल्स कितने आए हैं? किसी एक कंपनी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है. 11, 13, 13, 7, 19, 23, 25 is 13. इसका मोड कितना बता रहा है? वो 13 बता रहा है. तो मोड ऑफ द वैल्यू इज दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली. मोड हमेशा फ्रीक्वेंटली होता है क्या? मोड हमेशा फ्रीक्वेंटली, मोस्ट रिपीटेड डाटा को हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं ना. तो यहां पर कौन सा ज्यादा बार रिपीट हुआ है? देखिए हम 13 एक बार आया है, 13 2 बार आया है, तो कितने सबसे ज्यादा कौन सा आया है? 13 है. तो मोड इज 13 करेक्ट है. यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द आंसर? व्हाट शुड बी द आंसर? या व्हाट इज इट? Assertion is correct as well as explanation is also correct. So the correct answer should be both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of A, assertion. So the answer should be A. Okay, so with this we complete all the first term assertions and reason.